آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انسائیڈر کے ساتھ پروگرام اسپیشل رپورٹ، جس میں دن بھر کی اہم خبریں پہنچائیں گے آپ تک۔ پاکستان میں ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کی عاصم منیر سے اہم ملاقات، امریکہ سے تناؤ کے درمیان اسلام آباد ہائی الرٹ میں۔ ممبر پارلیمنٹ سنجے سنگھ کا سخت رد عمل، عام آدمی پارٹی کے راجیہ سبھا اراکین کا بی جے پی میں شامل ہونا غیر آئینی دیا قرار۔ پی ڈی پی رہنما التجا مفتی کا نیشنل کانفرنس حکومت پر سخت حملہ، عوامی مسائل میں ناکامی کا لگایا الزام، جنوبی کشمیر سے اپنی جماعت کے دوبارہ اٹھنے کا کیا اعلان۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف کی تنبیہ، تناؤ بڑھنے پر امریکہ کے اثاثوں کی فروخت پر پابندیاں ممکن، سرمایہ کاروں کو فوری فیصلے کا دیا مشورہ۔ ترکی کے وزیر خارجہ حکن فیدان کا بڑا بیان، امریکہ ایران امن معاہدے کے بعد اسٹریٹ آف ہارمز میں سرنگ صفائی میں شرکت کی تیاری، جنگ کی صورت میں پالیسی دوبارہ دیکھنے کا دیا اشارہ۔ اور سری نگر کے بیمنا میں بڑا کریک ڈاؤن، بھارت گیس کے 39 کم وزن ایل پی جی سلنڈر برآمد، قانونی خلاف ورزی پر سخت کارروائی شروع۔ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گلوبل انوویشنز کنسلٹنسی نے، جو کہ تعلیم کے لیے وادی کا بھروسے مند برانڈ ہے۔ اسٹار ہاسپٹل صنعت نگر سری نگر نے، جہاں دنیا کے بہترین ڈاکٹرز ہر مرض کا شفا بخش علاج کرتے ہیں۔ سینسوکیزر، جو کہ سردی کے موسم میں گرم پانی کے لیے جموں کشمیر کے لوگوں کا بھروسے مند برانڈ کرنے، جہاں دنیا کے بہترین ڈاکٹرز ہر مرض کا شفا بخش علاج کرتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس اراغچی نے پاکستان کے سپاہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی ہے، جبکہ ایرانی وفد اسلام آباد پہنچ چکا ہے۔ یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جبکہ امریکہ کے ساتھ سفارتی تناؤ مزید بڑھ چکا ہے اور بات چیت پوری طرح سے رک سی گئی ہے۔ دارالحکومت اسلام آباد اس وقت سخت سیکیورٹی میں ہے، شہر کے بڑے راستے بند کر دیے گئے ہیں اور ہائی سیکیورٹی ریڈ زون کو مکمل طور پر گھیرا بندی میں لے لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے بھی اپنے پیغام میں کہا گیا کہ انہیں ایران کے وزیر خارجہ کا اسلام آباد میں خیر مقدم کرتے ہوئے خوشی ہوئی اور وہ امید رکھتے ہیں کہ یہ ملاقاتیں علاقائی امن اور استحکام کے لیے مؤثر ثابت ہوں گی۔ یہ دورہ اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ کیونکہ وائٹ ہاؤس نے اعلان کر دیا ہے کہ ان کے نمائندے سٹیو وٹکاف اور جارد کشنیر بھی جلد ہی اس علاقے کا دورہ کریں گے تاکہ ایران کے ساتھ ممکن بات چیت ہو سکے، لیکن تہران نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں کرے گا۔ اس سفارتی تناؤ کا اثر اسلام آباد کی روزمرہ زندگی پر بھی نظر آ رہا ہے۔ بلو ایریا کے تجارتی مرکز سنسان ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام متاثر ہے اور لوگوں کو اشیاء ضروری کا بھی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ساتھ ہی لوگ ذہنی دباؤ اور بے چینی کا شکار بھی ہو گئے ہیں۔ یہ صورتحال پہلے بھی 11 اور 12 اپریل کو دیکھنے کو ملی تھی، جب پہلی دفعہ بات چیت ہوئی تھی، لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ اصل تناؤ 3 بنیادی مسائل پر ہے: ایران کا زیادہ افزودہ یورینیم اور اس کا جوہری پروگرام، اسٹریٹ آف ہارمز کو دوبارہ کھولنا اور لبنان میں اسرائیل کی فوجی کارروائیاں۔ وائٹ ہاؤس کا یہ کہنا ہے کہ وہ براہ راست ملاقات کے لیے تیار ہے، لیکن ایران کے سرکاری ذرائع کی جانب سے اس بات کو رد کر دیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ سیدھی بات چیت ممکن نہیں۔ اس کے باوجود وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیویٹ کی جانب سے تصدیق کر دی گئی ہے کہ 2 نمائندے اراغچی کے ساتھ ملاقات کریں گے اور امید ہے کہ یہ گفتگو کسی معاہدے کی طرف بڑھنے میں مدد دے گی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ نائب صدر جے ڈی وانس اس دورے پر نہیں جا رہے، لیکن وہ اس عمل میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ جے ڈی وانس نے پہلے ہونے والی 21 گھنٹوں کی سخت گفتگو کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے کوئی حل نہیں نکلا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران کی جوہری صلاحیت کو نقصان پہنچایا گیا ہے، لیکن اب تک یہ یقین دہانی نہیں ملی ہے کہ ایران دوبارہ جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ یہ سفارتی کوششیں سال 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد سب سے بڑی سطح کی بات چیت میں سے ایک ہیں، لیکن اب حالات یہ ہیں کہ ایران تب تک بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے جب تک کہ امریکہ اس کی بندرگاہوں پر سمندری گھیراؤ ختم نہیں کرتا۔ اس کے جواب میں ایران نے بھی اسٹریٹ آف ہارمز پر گہری رسمی پابندی لگا دی ہے، جس سے کہ جہازوں کی آمد و رفت بہت متاثر ہوئی اور دنیا بھر کی معیشت میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ عام آدمی پارٹی کے سینئر رہنما سنجے سنگھ کی جانب سے راجیہ سبھا کے چند اراکین کے بھارتیہ جنتا پارٹی میں شامل ہونے پر سخت رد عمل دیا گیا۔ انہوں نے اس عمل کو غیر آئینی، غیر قانونی اور پارلیمنٹ کے قواعد کے خلاف قرار دیا۔ سنجے سنگھ کا یہ کہنا ہے کہ 7 افراد نے جس طریقے سے بی جے پی جوائن کی ہے وہ بالکل غلط ہے اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اینٹی ڈیفیکشن قانون کے مطابق کسی قسم کی ٹوٹ پھوٹ یا الگ گروپ بنانا اسمبلی، راجیہ سبھا یا لوک سبھا میں منظور نہیں اور اس کی کوئی بھی آئینی بنیاد نہیں ہوتی۔ سنجے سنگھ نے اپنے موقف کو دوبارہ دہراتے ہوئے کہا کہ عام آدمی پارٹی کے 7 راجیہ سبھا کے اراکین کا بی جے پی میں جانا نہ صرف
सिर्फ गलत है बल्कि कानून और दस्तूर के बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो इस मामले को मजीद उठाने वाले हैं और राज्यसभा के चेयरमैन जो कि मुल्क के नायब सदर भी हैं उनको खत लिखकर दरख्वास्त करेंगे कि इन तमाम 7 अराकीन की मेंबरशिप खत्म कर दी जाए। उनका ये भी कहना है कि यह कदम जरूरी है ताकि कानून की बालादस्ती बरकरार रहे। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि इनमें से कम 3 अराकीन को बीजेपी के दफ्तर जाते हुए देखा गया था, जो कि इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये सब कुछ पहले से तय था। ये तमाम सूरत हाल उस वक्त सामने आई है जब आम आदमी पार्टी को बड़ा सियासी झटका लगा और उसके राज्यसभा के अराकीन जिनमें राघव चड्ढा भी शामिल हैं, उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। राघव चड्ढा को इससे पहले राज्यसभा में पार्टी के नायब रहनुमा के ओहदे से हटा दिया गया था। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राघव चड्ढा ने इस बात का ऐलान किया कि पार्टी के अपर हाउस के 2/3 अराकीन बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जो कि काफी अरसे से चल रही अंदरूनी खिंचन का भी नतीजा है। इस फैसले ने आम आदमी पार्टी के रहनुमाओं में गुस्सा पैदा कर दिया, जबकि बीजेपी ने इसे खुशी से कबूल किया। बीजेपी ने इस मौके को सियासी तौर पर इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल पर भी तनकीद की। दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि यह कदम फितरी था और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। साथ ही बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन की जानिब से भी बीजेपी हेडक्वार्टर्स में इनमें शामिल होने वाले अराकीन का खैर मकदम किया गया और उन्हें मुबारकबाद भी पेश की गई। उन्होंने कहा कि ये सभी लोग मिलकर साल 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने में अपना किरदार अदा करेंगे। इसी तरह ये सियासी तब्दीली न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा नुकसान साबित हो रही है बल्कि मुल्क की सियासत में भी एक नया मोड़ ला रही है, जहां पर कानूनी और आईनी बहस अब मजीद तेज होती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रोकने, तोड़ने और उनके काम को बाधित करने का काम किया है। पंजाब की जनता के साथ धोखा देने का काम किया है। और आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। ये 7 नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये 7 नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से हाल ही में अपने बयान में कहा गया कि पार्टी इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जैसे साल 2002 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जनूबी कश्मीर से अपनी शुरुआत की थी, वैसे ही पार्टी का दोबारा उभरना भी यहीं से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि जनूबी कश्मीर के साथ उनका हमेशा से एक खास रिश्ता रहा है और आज भी लोगों का उन पर भरोसा नजर आता है। उनका ये भी कहना है कि कन्वेंशन के बाद भी लोग उनके इर्द गिर्द जमा है, जो कि इस बात का सबूत है कि अवाम को पार्टी और महबूबा मुफ्ती की क़ियादत पर यकीन है। इल्तिजा मुफ्ती ने अवाम के मसाइल पर बात करते हुए कहा कि लोग बहुत परेशान हैं, खासतौर पर नौजवान जो जेलों में बंद है, जिन पर पीएससी और यूएपीए जैसे कवानीन लगाई गई हैं, जबकि कोई भी जवाबदेही नजर नहीं आती है। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने रेवेन्यू रिकॉर्ड से उर्दू जबान को हटा दिया, जो कि सदियों से यहाँ की पहचान रही थी, और सवाल उठाया है कि ऐसी सूरत में ये लोग कश्मीर की पहचान की हिफाजत कैसे करेंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि गाँव में बुनियादी सहूलियात की सख्त कमी है, लोगों को साफ पानी तक दस्तयाब नहीं है और पानी जैसी जरूरी चीज के लिए भी उनके लिए एक ऐश बन चुकी है। इसी सूरत हाल को मजीद नजर रखते हुए उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी जल्द ही बुनियादी सतह पर एक प्रोग्राम शुरू करेगी ताकि अवाम के मसाइल हल किए जा सके। इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से यह भी तस्लीम किया गया कि पार्टी इस वक्त अंदरूनी और बाहर के दबाव का सामना कर रही है और पार्टी को अपनी स्ट्रैटेजी पर दोबारा गौर करना होगा। उन्होंने पार्टी वर्कर से अपील की है कि वो मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहें और अपनी हिम्मत भी बरकरार रखें। उनका कहना है कि ये वक्त इत्तेहाद और मुश्तरका कोशिश का है, जिससे कि पार्टी दोबारा अपनी जगह बना सकती है। वाज़ेह रहे कि आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद से जम्मू कश्मीर की सियासत में काफी तब्दीलियां आई और मुख्तलिफ सियासी जमातें नए माहौल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कायम की थी, वहीं हमेशा से कश्मीर के लिए एक मुख्तलिफ सियासी पहचान की बात करती रही। गुज़िश्ता कुछ सालों में भी पार्टी को इंतखाबी और तंजीमी नुकसानात का सामना करना पड़ा, जिसमें कि रहनुमाओं का अलग होना और वोट बैंक में कमी शामिल रही। ज़राए के मुताबिक इल्तिजा मुफ्ती का यह बयान पार्टी वर्कर्स का हौसला बढ़ाने के लिए दिया गया ताकि वो पार्टी के मकसद और सोच पर कायम रहे। उनका यह भी कहना है कि क़ियादत मुश्किलात से निकलने के लिए रोड मैप पर काम कर रही है, जिसमें कि तंजीम को मजबूत बनाना और अवाम के साथ दोबारा राब्ता बरकरार रखना शामिल है। उनका पैगाम वाज़ेह था कि बदलते सियासी माहौल में सब्र, हिम्मत और इत्तेहाद ही पीडीपी को दोबारा मजबूत बना सकती है। जो हमारे नौजवान भाई हैं, बहनें हैं, हमें पता है यहाँ कितनी बेरोजगारी है और बेरोजगारी के हवाले से भी एनसी यहाँ कुछ नहीं कर रही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ नौजवान ही नहीं, यहाँ बुजुर्ग भी आए जो पीडीपी के बहुत पुराने वर्कर्स हैं।
हर एक कोने से, साउथ कश्मीर से वो आए, so we are indebted to them. ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ की जानिब से तनबीह दी गई है कि अगर तनाव मजीद बढ़ता रहा तो अमेरिका के माली असासों तक रसाई सख्त हो सकती है, और सरमायाकारों को भी मशवरा दिया गया कि जब तक रास्ता खुला है निकल जाएं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा है कि कुछ ऐसे माली इकदाम किए गए जो कि बैरूनी तौर पर तो मार्केट को स्टेबल दिखाने के लिए हैं, लेकिन असल में कुछ लोगों के लिए अपने असासे बचाना मुश्किल हो चुका है। उनका कहना था कि कुछ इदारे शायद छुपे तौर पर ही पाबंदियों का सामना कर रही हैं, जहां पर उन्हें सिर्फ बहुत कम हिस्सा बेचने की इजाजत है, और अगर सूरत हाल मजीद बिगड़ती गई तो यह रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो सकता है। गालिबाफ की जानिब से यह भी कहा गया कि अमेरिका इस वक्त अपने बॉन्ड मार्केट को बचाने पर तवज्जो दे रहा है, जहां पर उनका असल मैदान यील्ड कर्व है, यानी वो कोशिश कर रहा है कि ज्यादा लोग एक साथ अपने बॉन्ड्स ना बेचें, वरना उनकी कीमत गिर सकती है और नुकसान बढ़ सकता है। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया है कि अमेरिका अपने इत्तेहादी ममालिक को माली सहारा देने के लिए करेंसी स्वैप जैसे निजाम पर गौर कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएस के खजाना के सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने यूएई और कुछ दूसरे ममालिक को इस सहूलियात देने की हिमायत भी की है, जो कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग के असरात से मुतासिर हो रही हैं। दूसरी तरफ से वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने इस माशी नुकसान का जिम्मेदार सीधा तौर पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को ठहराया है और अमेरिका के साथ बातचीत शुरू की है, ताकि अगर जंग बढ़ती है तो अपनी माशियत को बचाने के लिए कोई माली तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया जा सके। ये तमाम सूरत हाल उस जंग के बाद पैदा हुई जो कि 28 फरवरी को शुरू हुई थी, जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हवाई हमले किए थे और ईरानी रहनुमाओं और फौजी असासों को भी और अफसरान को भी निशाना बनाया था, जिनमें की रहबरे इनकलाब आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी भी शामिल थे। इसके जवाब में ही ईरान लगभग रोजाना मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए, जो कि इस्राएली कब्जे वाले इलाकों और अमेरिका के फौजी अदारों को भी निशाना बना रहे थे। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हक्कन फिदान की जानिब से कहा गया है कि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन का मुआहदा हो जाता है तो तुर्की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में सुरंगों की सफाई के अमल में हिस्सा ले सकता है। लंदन में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया है कि ये काम मुख्तलिफ ममालिक की फ़ानी टीम मिलकर करेगी और तुर्की को इसमें शिरकत करने में कोई मसला नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक फ़ानी और मददी कदम होगा जिसका मकसद समुद्री रास्तों को महफूज बनाना है। हक्कन फिदान ने साथ ही एहतियात का भी इजहार करते हुए कहा कि अगर मुस्तकबिल में ये फ़ानी इत्तेहाद दोबारा किसी जंग का हिस्सा बनता है तो तुर्की अपनी पॉलिसी का दोबारा जायजा लेगा। उन्होंने वाज़ेह किया है कि तुर्की किसी भी ऐसी सूरत हाल का हिस्सा नहीं बनना चाहता जो कि सीधा तनाज़ात में तब्दील हो जाए। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान के जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक मसाइल अलग दौर की बातचीत में हल हो सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में मुतवक्का है। इससे ये उम्मीद की जा रही है कि सिफारती सतह पर कोई रास्ता निकल सकता है और तनाव कम हो सकता है। तुर्की का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब पूरा इलाका बेचैनी का शिकार है और समुद्री रास्तों की हिफाजत और इलाकाई अमन बहुत अहम बन चुका है। और श्रीनगर के बाहरी इलाके बेमना में लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक कार्रवाई के दौरान भारत गैस के 39 एलपीजी सिलेंडर जब्त कर लिए, जो कि वजन में कम पाए गए। हुक्मरान अफसरान के मुताबिक इन सिलेंडर में तकरीबन 800 ग्राम से लेकर 1 किलो तक की कमी पाई गई है। ये कार्रवाई उस मुहिम का हिस्सा है जो कि गैर मेयारी आशिया और नापतोल के कवायद की खिलाफ वर्जी के खिलाफ जारी है। जायजा लेने वाले अफसर की जानिब से बताया गया है कि मुतल्लिका कानून यानी लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट साल 2009 के सेक्शन 30 और 36 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है, क्योंकि जरूरी वजन के कवायद पर अमल नहीं किया जा रहा। जायजे के दौरान ही ये भी सामने आया है कि डिस्ट्रीब्यूटर डिलीवरी के वक्त वजन नापने वाली मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और ना ही कंज्यूमर्स को सिलेंडर का असल वजन बताया जा रहा था। डिपार्टमेंट के मुताबिक ये अमल न सिर्फ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट बल्कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है, जिससे कि अवाम के हकूक और जरूरी आशिया की फराहमी में भी शफाफियत मुतासिर होती है। भारत गैस के एक नुमाइंदे की जानिब से कहा गया है कि डिस्ट्रीब्यूटर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है और कंपनी की तरफ से भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हुक्मरान अफसरान की जानिब से यह भी वाज़ेह किया गया कि ऐसी चेकिंग और कार्रवाइयां मजीद इलाकों में भी जारी रहेंगी, ताकि तमाम स्टैंडर्ड्स पर अमल को यकीनी बनाया जा सके और अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इधर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।